What is the thin line between startup and traditional business? देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि पहले ज़माने में जो बिजनेसमैन होते थे वही एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में या फिर आप बोलो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और स्टार्टअप में कुछ मेजर ट्रेट्स जो कि अलग हैं वो ये हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कभी भी कोई बंदा स्टार्टअप करता है तो जब वो फंड रेज करने जाता है तो बेसिक गलतियां वो क्या करता है? Don't go for funding just to come on the headlines. My first, advice to them is always that don't go for funding. Okay. लोगों ने एक पिच डेक का बहुत बड़ा हाइप बनाया हुआ है। तब आपका कहना ये है कि जब नंबर्स की बात आएगी तब सब ओपन हो जाएगा। आपने अभी तक जितने भी स्टार्टअप को गाइड किया है, आप मुझे ये बताओ कि इसमें से जब भी आप फर्स्ट राउंड ऑफ फेज में जब आप उसको फिल्टर करते हो तो कितने सही में इन्वेस्टर रेडी होते हैं? Most of the startups, 99% are not investor ready, and that is okay. अच्छी टीम बनाना वो कितना इम्पोर्टेंट है? As a founder, आपको अपना ईगो जीरो कर देना पड़े first. Secondly, you can't be choosy कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, मुझे इसके साथ काम करना है. You have to be open to work with anyone. टीम, ट्रैक्शन एंड टाइमिंग। ज्यादातर जो भी इन्वेस्टर है वो कौन से चीज पे ज्यादा फोकस करता है? It's good to be zero than have one traction. What's the one thing investor notices within the first 30 seconds of your pitch? And here's the real question. Are you even truly investor ready or just fundraising because everyone else is doing it? Today on Radical Talks, we are going to unlock the mindset, strategy, and mistakes founder often overlook with someone who has built ventures and helped over 200 plus startups to navigate their funding journey. She is the CEO of Entrepreneur Incubator, co-founder of Health Code, Protein Box, and founder of Brainovation, a true force in India's startup ecosystem. So let's have some insightful conversation with Devopriya Chakravarti. So welcome Devopriya on Radical Talks. So आज का conversation हम ऐसे start करेंगे कि मैं founder हूँ और मुझे fund raise करना है, तो मुझे उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाउंडर्स का एक एम होता है कि उनको फंड रेज करना है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट और दे आर रेडी और नॉट। सो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई होप हम कुछ ऐसा डिस्कस करें जिससे इट मेक्स सम सेंस and it adds some value to the ecosystem. So talking about investor readiness, talking about क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए before approaching an investor. First of all, we should not, as a startup, I suggest or I will tell you that you should not, on your day one, you should not think of raising funds. Okay. Investor should not be the number one thought in your mind when you are building a startup. Okay. Or when you are working on an idea. So when you are working on an idea, either you have a problem and a purpose, or you have none of it. तो आप अगर इन्वेस्टर के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो फिर वो आपका पर्पसफुल आइडिया नहीं है। सो इन्वेस्टर को आप डे वन से मत सोचिए। आप सोचिए कि आपको ये आइडिया बिल्ड करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गोल्डन सर्कल रूल विच आई सजेस्ट टू मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, इफ आई शुड बी स्पेसिफिक, दैट इज व्हाट, व्हाई एंड हाउ. देयर आर अदर एलिमेंट्स टू इट, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी है, which is what, why and how. If these 3 things are clear in your mind, then half of the story is done. Okay. Which is what are you doing? Okay. Let's say that you are creating the next Uber. Okay. Or why are you doing it? Is it that Uber is not doing well?
Is it that there is some problem that Uber is still not solving? Is it that customers are not happy with Uber? Is it that there is certain technical glitch which is occurring again and again, which you know that you can solve, or you have the solution for it, or you have the vision to solve the solution for it? Okay. So what, why and how? So let's say मैंने आपको बताया कि मुझे चांद तक जाना है. चांद तक सबको जाना है, बट कैसे जाना है का कोई बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन या मोड ऑफ थॉट है आपके पास कि इस तरीके से मुझे लगता है जा सकते हैं, इवन इफ इट इज हाइपोथेटिकल. बट आपने बेस्ड ऑन सर्टेन रिसर्च, बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा, based on something you must have created a certain roadmap कि इस तरीके से करना है. So that would be something that is the must. ठीक है? Okay. For you to even think of a startup. Okay. And one thing that I would say that no startup or no founder or no individual should do is just to have a startup because of the glamour factor. That's what is happening most of the time in today's ecosystem. Most of the people want to have a startup just because they want to have a startup. They want to be called as a founder. Right. So मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन स्टार्टअप एंड ट्रेडिशनल बिजनेस. कि कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को भी आप स्टार्टअप के तौर पे एक्सपांड कर सकते हो या स्केल कर सकते हो? एकदम कर सकते हो. ओके. सो देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि पहले ज़माने में जो बिजनेसमैन होते थे वही एंटरप्रेन्योर है. बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में, या फिर आप बोलो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और स्टार्टअप में, अगर कुछ मेजर ट्रेट्स जो कि अलग हैं वो ये हैं: रिस्क टेकिंग एबिलिटी, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रेडी फॉर द चेंज. जो रेडी टू पाइवट होते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऐसे रहे हैं जो बहुत रेडीली या बहुत क्विकली पाइवट नहीं करते थे. बट स्टार्टअप इज पाइवटिंग. Okay. You have to keep pivoting to be a startup. You can't just stick to one, product or one service and say that हाँ मैं तो ऐसे ही market capture करूँगा, जितना है उतना काफी है. If that is there and you're happy with it, then that's good. That's not anything bad. ठीक है. If you think that your purpose is solved and you are happy, then that's good. But that is not what a startup is about. Startup is about pivoting. कि ये नहीं हुआ तो वो करते हैं. एक साथ दो तीन चीजें एक साथ pivot करते हैं. Just to check how much the depth is, how deep is the water. So you keep testing it. That's the difference between a startup and a traditional business. Again, one more important thing about a startup is that a startup or a startup founder should always be ready to grasp whatever is happening new in the market and create the next step or the next version according to that. You just cannot stick to a version by saying कि हाँ ये कल बिका था तो ये आज भी बिकेगा. Right. ये कल बिका था तो आज शायद इसका सेल्स ड्रॉप हो जाए, आपको शायद कुछ और नया बनाना पड़े. तो उस हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट को एवेल्युएट करते रहना पड़ेगा. ओके. सो मुझे आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कभी भी कोई बंदा स्टार्टअप करता है तो जब वो फंड रेज करने जाता है तो बेसिक गलतियां वो क्या करता है पहले, जो आपने अभी तक देखा हो, वो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. देखिए, सबसे पहली गलती, सबसे पहला चीज़ जो किसी भी स्टार्टअप को, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या चाहे वो स्टार्टअप हो, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डू यू इवन वांट द फंडिंग. ओके. आपको फंडिंग की जरूरत है भी कि नहीं, पहले वो चेक कर लीजिए. डोंट गो फॉर फंडिंग जस्ट टू कम ऑन द हेडलाइंस कि so and so startup got funded with an undisclosed amount of so and so from so and other VCs. इस हेडलाइन के लिए फंडिंग के लिए मत जाइए. सो मेरे पास जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, माई फर्स्ट advice to them is always that don't go for funding. Okay. First, see to it that there are other resources available, like the government grants, like the subsidies, which is available through the government, which you can avail, which is a non-equity
funding or a non-equity grant. Next, you can also try for debt. Rather than going for equity funding, you can go for debt. You can go for non-collateral loans. So first, try to go for these steps, and then you may go for investment, like equity investment. But again, if you're going for equity investment, coming to a question, one thing is your paperwork should be clean. You should have a very clean accounting work. When I say paperwork should be clean, I means कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो फाउंडर्स करते हैं, जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोलते. क्योंकि चेक करने के लिए हम पहले अपने अकाउंट से बिजनेस करना शुरू करते हैं, अपने अकाउंट में ही पैसे लेते रहते हैं, फिर 1 साल हो जाता है, अब लगता है कि अब ठीक है, चलो अब कंपनी खोलते हैं. तो ये जो 1 साल का कमाई है, वो तो आपका अकाउंटिंग बुक में आया नहीं. राइट. व्हाट्स दैट? सो दैट मीन्स वो लीकेज हो गया आपका. तो ये गलती करते हैं लोग. उसके बाद जीएसटी ना भरने की गलती करते हैं. सो आपके हिसाब से इसमें प्रोप्राइटरशिप पहले इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या सीधा हम प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए? आपके एक्सपीरियंस से क्या सही है? देखिए, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन व्हिच हैज टू बी व्हिच इज सब्जेक्टिव, based on the type of business what you're doing, based on your vision, I'll be able to tell you. Okay. But keeping that aside, if you're talking about an investor, let's say if you want to go for an investment, what are the things that you should be? So you should be very accurate with your paperwork. If you are not, let's say that there is some trouble that you are facing with your paperwork, you should have the ethical backbone to say that कि भाई मेरा जो है ये प्रॉब्लम है. You should be aware of your problems. Okay. So these are the problems that I'm facing, and that's the reason I'm approaching you as an investor. अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, अगर मेरा बिजनेस अच्छा ही चल रहा होता तो मैं क्या कर रहा, मैं आपको अप्रोच ही क्यों करता? प्रॉब्लम्स है, लीकेजेस है, इसलिए ही आपको अप्रोच कर रहा हूँ, so that you come in, be a strategic investor, and then we can grow together. Second and very important thing is that the investor should be very clear about where is the money coming from. मतलब आप कमा कैसे रहे हो. तो आप ABC, let's say 3 तरीके हैं जिससे आप कमा रहे हो. तो आपको जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है, वो आपको और आपके इन्वेस्टर को कन्विंसिंग लगना चाहिए. ओके. ठीक है. लोगों ने एक पिच डेक का बहुत बड़ा हाइप बनाया हुआ है. पिच डेक बहुत अच्छा होना चाहिए, विच इज वेरी ट्रू. बट पिच डेक तो बस कपड़े हैं. आप इंसान कैसे हो वो तो आपके कपड़े नहीं बताएंगे. आपके कपड़े आपको अच्छे दिखने में मदद कर सकते हैं. योर क्लोथ्स कैन मेक यू लुक प्रेजेंटेबल, बट इट विल नॉट चेंज व्हाट यू आर बाय योर कोर. राइट. सो आपका बिजनेस ही में अगर लीकेज हो, आपके बिजनेस में ही अगर प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार के लिए रूम में घुसने के लिए आपका स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी, आपका पिच डेक विल हेल्प यू, बट योर कोर बिजनेस रेवेन्यू, योर कोर बिजनेस बैकबोन विल हेल्प यू टू स्टे इन द रूम. ओके. तब आपका कहना ये है कि जब नंबर्स की बात आएगी तब सब ओपन हो जाएगा. राइट. सो आपने अभी तक जितने भी स्टार्टअप को गाइड किया है, आप मुझे ये बताओ कि इसमें से जब भी आप फर्स्ट राउंड ऑफ फेज में जब आप इसको फिल्टर करते हो तो कितने सही में इन्वेस्टर रेडी होते हैं, या तो फिर आप उसके पास कितना वर्क करते हो, कितने टाइम का ड्यूरेशन जाता है उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर आउट करने में, वो आप अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे. देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो भी स्टार्टअप्स से मैं मिली हूँ, मतलब जो मेरे पास फॉर एडवाइस आते हैं, फॉर मेंटोरिंग आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स 99% are not investor ready, and that is okay, because अगर वो investor ready होते तो मेरे पास क्यों आते? राइट. वो मेरे पास आ ही रहे हैं to get investor ready. So I am not even expecting them to be investor ready. All I am expecting them is to have the founder conviction. Even if I want founders to be in a frame wherein even if I am trying to tell them that this is not going to work, I think this is not going to work, but they should have the conviction to prove it. नहीं मैम, ये काम करेगा. This is how I think it will work. That's what I'm looking for. So I'm looking for the founder conviction. I'm looking for the
energy that the person brings in or the team brings in. So my first parameter to get attached to or get working with a startup is the team. Okay. Team is utmost. Of course, team सिर्फ टीम से काम तो होगा नहीं. Team is the main, driving force. But to that team, there should be, again, the entailing vision to the team. कि जो वो सोच रहे हैं, अगर सोचिए कि सोलो फाउंडर है तो एक बंदा सोच रहा है. अगर सोचिए कि 4 लोग हैं, चारों लोग सेम सोच रहे हैं. Are they complementing each other? These things are very important for me to, first get a grip of their idea or their vision or to start working with them. ओके. बट इसमें मेरा क्वेश्चन ये भी है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब 90% ऑफ लोग जब अपना खुद का स्टार्टअप रन करते हैं वो सोलो फाउंडर्स होते हैं. फिर उसके बाद जब उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस वर्ल्ड का, तब वो टीम बनाने जाते हैं. फिर उनको एक ख़राब एक्सपीरियंस होता है. देन या तो फिर वो जॉब करना स्टार्ट करते थे या फिर वो ख़राब एक्सपीरियंस से शायद बाहर भी ना आ पाए. तो ऐसे स्टेज में अच्छी टीम बनाना वो कितना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ कि टीम बनाते वक्त कैसे माइंडसेट से उनको साथ मतलब जुड़ना चाहिए, वो भी एक मेरा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते और फिर उनका आइडिया फेल हो जाता है या फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते. उसमें आपका क्या सजेशन है कि कैसे राइट टीम मेंबर को आप ऑन बोर्ड करो? This is a very, 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 very common question which I always get asked. So I'll answer it this way. As a founder, you have to think that you are the engine. ओके. आप इंजन हो. अब आप अगर सिर्फ इंजन चलोगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है. राइट. ठीक है, आपको पीछे वैगन्स तो चाहिए ही, भले ही पीछे हो बट वैगन्स तो चाहिए ही. एंड यू हैव टू सी टू इट दैट यू डोंट गेट डिरेल्ड. आप वैगन आपको रेल लाइन पे चलाना पड़ेगा, रेल लाइन के नीचे तो उसकी वैल्यू नहीं है. तो एज अ फाउंडर आपको अपना ईगो जीरो कर देना पड़े फर्स्ट. सेकेंडली, यू कांट बी चूजी कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, मुझे इसके साथ काम करना है. यू हैव टू बी ओपन टू वर्क विथ एनीवन. कोई भी हो, काम निकलवाना और काम करना आपको आना चाहिए. आप अगर बोलोगे नहीं मैं उसके साथ नहीं काम कर सकता क्योंकि उसने मुझे इसमें मना कर दिया था, नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो मेरे से नीचे कैडर का है. नहीं, you can't. You just can't. You have to see to it that wherever there is opportunity and whoever is the person, you should batch the opportunity and you should work with that person. So you can't choose. So you have to understand. As a founder, I don't have a choice. I am in this ship and I am the captain of the ship. I have to anyhow take this ship to the shore. राइट. And that shore where I'm taking the ship is not the destination. It has to again start the voyage. So ये चलते रहने वाली कहानी है. तो इसमें आप ये चूज नहीं कर सकते कि मुझे, आपको लग रहा है कि आपके जो स्टार्टअप है, आपके स्टार्टअप में आपको एक टेक्नोलॉजी वाले बंदे की ज़रूरत है और आपके सामने एक बंदा बैठा है जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है. उसको कैसे अप्रोच करूँ, मैंने तो कभी किया नहीं है. कैसे क्या अप्रोच करूँ, डू और डाई. यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन कि भाई ऐसा है, let's collaborate. How do you see it? I want a person in house. How do you see it? कैसे करना है? You have to just start, just do it. You can't open a matrimony for co-founders and think कि वहाँ से हम मैपिंग करके वहाँ से मैचिंग होगा फिर मिलेंगे. It doesn't work that way. राइट. You have to see that you cannot choose a co-founder without seeing that person work on field, seeing how hustling that person is. सिर्फ प्रोफाइल देख के तो आप को-फाउंडर और टीम नहीं बना सकते. प्रोफाइल देख के आप हायर कर सकते हो बट प्रोफाइल देख के आप को-फाउंडिंग या फिर आपका जो कोर टीम नहीं बना सकते. बट ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में मैंने एक प्रॉब्लम ऐसा देखा है कि जो बंदा पूरी शिद्दत से अगर स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, फिर उसको एक टेक पार्टनर चाहिए या फिर ऐसा कोई बंदा चाहिए कि जो उसकी फील्ड में स्मार्ट है. तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है या तो फिर उसकी सैलरी इतनी हाई होती है जो स्टार्टअप उसको नहीं दे सकता, या तो उसके एम्बिशंस कहीं अलग होते हैं. तो ऐसी चीज़ों में वो सामने वाले बंदे को कैसे एनरोल कर सकते हैं? बहुत 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 सही बात आपने पूछा है. तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ. मैं ऐसा मानती हूँ कि आप
अगर सोलो फाउंडर हो ना, तो आपको ऐसा मानना है कि आपका क्लाइंट भी आपका क्लाइंट है एंड आपका टीम भी आपका क्लाइंट है. ओके. ठीक है. टीम को कन्विंस करके, आपको अगर लग रहा है कि आपके सामने जो बंदा या बंदी बैठी है वो पोटेंशियल टीम आपका बन सकता है, तो उनको कन्विंस करके लाना इज ऑल्सो योर नेगोशिएशन स्किल्स. सो यू हैव टू, so you are doing entrepreneurship all around. Entrepreneurship is not just selling a product or selling a service and getting the money in your account, or convincing an investor to get that person on board. No, getting a right team, convincing that person to get on board today on less salary, and then hiking the salary once we cross that mark. Even that is a convincing skills. Okay. Even that is a hardcore convincing skill a entrepreneur requires. आप एक सिंपल बात समझो, ये यहाँ तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप जो नेगोशिएट करते हो एज अ सैलरी, आपको वही तो मिल नहीं जाता है. आप नेगोशिएट करते हो, सामने वाला भी नेगोशिएट करता है, करके आपको एक बजट के अंदर वो लेके आता है. चाहे वो बड़ी सी बड़ी कंपनी, छोटी सी छोटी कंपनी, कोई भी ये करता है. वो क्या करता है? वही करते हैं, बट वो एचआर के थ्रू करवा रहे हैं. राइट. और हम यहाँ पे फाउंडर को करने बोल रहे हैं. यू हैव टू. सो एज अ फाउंडर यू आर वेयरिंग ऑल द हैट्स. यू आर द एचआर, यू आर द पियोन, यू आर द ऑफिस स्टाफ, you are the administrator, you are the operations guy, you are the delivery guy, you are everything. So you have to take this hat too. Okay. But sometimes what happens कि जब हम ऐसे टीममेट्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं तो उनकी जो डिमांड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. लाइक अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी की बात ना करें तो इक्विटी साइड होता है. तो जब भी ये प्रॉब्लम्स फिर हमको जब फंड रेज करने जाते हैं तब आता है. तो ऐसी चीज़ों में जब हम इक्विटी डाइल्यूट करते हैं तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइक मैं एक टेक पार्टनर ऑन बोर्ड कर रहा हूँ या फिर ऑपरेशन का बंदा, तो उसमें कौन से पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि वो आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदा चुनना ही ऐसा चाहिए जिसका विजन आपके साथ कोलाइड हो रहा हो. ओके. ठीक है. आप जो काम कर रहे हो, आप जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हो, या आपका जो आइडिया है या आपका जो बिजनेस है, उसमें वो बंदा उतना ही इन्वेस्टेड है जितने आप हो. उतना ही इन्वेस्टेड, नॉट जस्ट प्रैक्टिकली, इमोशनली इन्वेस्टेड. ओके. इमोशनल एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट उतना ही है जितना आपका है. तब जाके ही अप्रोच करो, क्योंकि तब जब अप्रोच करोगे तो वो बंदे को या उस बंदी को जब आप बोलोगे कि सैलरी अभी इतना करते हैं, उसके बाद हम करेंगे, उसके एक फंड रेज हो जाए, उसके बाद हम सैलरी और आगे बढ़ाएंगे, या इक्विटी अभी इतना ही रखते हैं, क्यों, उसका रीजनिंग भी उसको समझ में आएगा कि अभी हम इतना सैलरी या इतना इक्विटी क्यों रख रहे हैं. बिकॉज यू आर ऑलरेडी सैलरीड समवेयर एल्स, यू आर नॉट फुल टाइम. तो हम आपका इतना ही सैलरी रख रहे हैं, आपका इतना ही डाइल्यूट कर रहे हैं. आगे जाके हमें, सो इट शुड नॉट बी अ फाउंडर्स विजन, इट शुड बी अ फाउंडर को फाउंडर्स विजन, इट शुड बी अ टीम विजन कि हमें आगे जाके 3 फंड रेज करने पड़ सकते हैं, उसमें हमें इतना इतना डाइल्यूट करने का हो सकता है. तो वो सोच के, वो आगे का फोरसाइट सोच के, अगर हम इतना डाइल्यूट करते हैं तो हम फायदे में रहेंगे, मैं फायदे में रहूंगा नहीं. ओके. So when we think that way and when we convey that to the to-be team or to the potential team member, then I'm sure this happens. And I have seen this happening. I'm not talking about stories. I have seen this happening on field. Okay. So therefore I know that this can happen. Okay. So आपने जितने भी टीम रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दिए, मैं भी बहुत चीज़ें हैं जो अभी अनफोल्ड कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ मेरे स्टार्टअप में. तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि टीम ट्रैक्शन एंड टाइमिंग, ज़्यादातर जो भी इन्वेस्टर है वो कौन से चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, या फिर तीनों मैटर करती है, तो कैसे करती है वो बताइए. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड engagements, first of all you should know that जितना ही स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर खोजना टफ होता है ना, उतना ही इन्वेस्टर के लिए भी स्टार्टअप खोजना टफ है. ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स के पास स्टार्टअप्स की मतलब थप्पे पड़े हुए हैं, स्टार्टअप्स मतलब उनके
ऑफिस में तो स्टार्टअप्स का लाइन लगा हुआ है, अच्छे स्टार्टअप्स का मतलब, एंड वो फंड नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे स्टार्टअप्स के खोज में ही रहते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स अच्छे इन्वेस्टर्स के खोज में रहते हैं. It is just like, so I give this example very commonly to most of my startups and even in other places where I visit. Startup investment is just like marriage. Okay. So you are searching for a woman as much as the woman is searching for you. So both of you are searching for each other. Okay. So there is no right investor, there is no right startup. So there might be a $1 billion idea startup which might not fit you as an investor, but there might be a pro VC who might not get a good exit from your startup. So that is a very so you have to map. So just don't go by the call that उसने बोला वो इन्वेस्टर बहुत मस्त है, या उस इन्वेस्टर के पास पैसा है, या वो इन्वेस्टर ने तो 2 यूनिकॉर्न को फंड किया हुआ है. तो दैट विल नॉट बी द रीजन कि आपका स्टार्टअप भी वो इन्वेस्ट करेगा तो वो कुछ बड़ा तोप हो जाएगा. राइट. ठीक है. सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिसर्च अबाउट द इन्वेस्टर्स, यू हैव टू रिसर्च अबाउट डिफरेंट VCs, देयर डोमेन्स. So you have to learn and research about which stage do you want to get funded, and which VC or which investor invests in which stage. Okay. आपको पता होना होगा कि डोमेन क्या होना चाहिए, कौन से डोमेन में कौन सा इन्वेस्टर फंड करता है, उसका फंड करने का इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है. So every investor has an investment thesis. Every VC firm has an investment thesis. Understand that. What is the investment thesis? Why do they want to fund? What is their thought process? What are their deal makers and deal breakers? तो ऐसा हो जाए कि ये नहीं है तो there is no point of discussion. ठीक है. If there is, अगर ये point नहीं है तो there is no point of discussion. कुछ investors ऐसे हैं जो solo founders को fund नहीं करते. Okay. कुछ investors ऐसे भी होते हैं जो couple founders को fund नहीं करते. ठीक है. कुछ investors होते हैं जो MVP के बाद ही fund करते हैं. कुछ investors होते हैं कि जिनको एक ट्रैक्शन आपका आ जाए, X रेवेन्यू आपका हो, उसके बाद ही आप उनको अप्रोच कर सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है. लाइक क्राइटेरियाज एज इन एंट्री क्राइटेरिया. वंस यू एंटर दैट, देन इट्स अबाउट फर्स्ट अभी के टाइम पे स्टोरी टेलिंग इज लाइक, स्टोरी टेलिंग जान जाएंगे तो मतलब दुनिया मुट्ठी में है. True. Storytelling is very important, very good, but that will give you access to a person. It will not help you have a relation with the person. Right. तो एक बार आपको स्टोरी टेलिंग करके मैंने सुना दिया, बट उसके बाद वो स्टोरी का आप भी चेक करोगे ना, उसका मैथ कितना डेप्थ में है. सो अगर मैथ का डेप्थ नहीं पता चला, इफ यू डोंट रियलाइज द नंबर्स आर ट्रू, then you will know that everything was a marketing gimmick. राइट. और दूसरी बात ये कि ट्रैक्शन की बात आती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर ट्रैक्शन में कौन से पैरामीटर्स है जो वेरीफाई करते हैं? देखिए, ट्रैक्शन एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ कि होता ऐसा है कि जब आपने कुछ काम किया है ना, आप ये बोल रहे हो, तो उनको बस ये देखना होता है कि वो काम आपने सही में किया है, उसका एथिनिसिटी कितना है, उसका एथिक्स कितना है. काम का एथिक्स देखना जरूरी है. उसके बाद पैसा लगेगा तो वो ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, बट ट्रैक्शन का एथिक्स जरूरी है, मैथ जरूरी है, कितने में बर्न रेट जरूरी है, कितना बर्न किया, कितना आया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन इन्वॉल्व थे, आया तो जो आया उसमें प्रॉफिट कितना है. ये सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड अगेन दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एरिक राइज ही सेज दिस कि इट्स गुड टू बी जीरो देन हैव वन ट्रैक्शन. मतलब अगर आपका जीरो है, कुछ है ही नहीं, आपका आइडिया है, देन एटलीस्ट आप इमेजिनेटिवली कुछ तो सामने वाले के दिमाग में समझा पा रहे हो. And again, if you think and if you know, if you believe that your idea is a breakthrough and a disruptive idea in the market, it's going to be,
देन आप इमेजिनेशन से अपने आइडिया को उनको समझाओ, rather than showing one traction which will again create a wrong math. आपका traction है but हल्का फुल्का, because you are early in the market. Because you're early in the market. Right. And you have not been backed by heavy money or heavy funding. So उस time पे क्या होता है that you are showing a math, but that math has become questionable because ये तो market में आ गया, फिर भी चल तो नहीं रहा है. Because चलने के लिए सिर्फ market में लाना is not enough, ना? There are so many aspects to it. Marketing, distribution channel, operations, promotions, infusing funds in creating the ecosystem. आप डोर टू डोर आपके काफी सारी चीजें हो जाती है. डोर टू डोर यू हैव टू क्रिएट द बज, क्रिएट द नॉइज, क्रिएट द हाइप ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस. तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी. राइट. बट जब आप अर्ली इन द मार्केट जाके ये दिखा देते हो कि आप गए हो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया है, सो यू योरसेल्फ आर शोइंग दैट you are there's still time for this product to enter into the market. राइट. इसमें मुझे आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है कि मैंने ज़्यादातर लोगों से ये सुना है कि D2C ब्रांड्स होती है, उसमें ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, या तो फिर कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, या तो थर्ड चीज़ कि मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ गया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया. बट मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी ने स्टार्टअप किया है और उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया है. तो ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते कि ट्रेडिशनल तो सब कुछ करते हैं, सब कोई करता है, तो उसमें क्यों परसेंटेज कम हो जाता है गेटिंग इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिशनल बिजनेसेस फंडिंग के लिए उस तरीके से नहीं जाते हैं जैसे स्टार्टअप्स जाते हैं. ओके. स्टार्टअप्स एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट भी कर रहा है, स्टार्टअप एक 60 इयर्स का बंदा भी कर रहा है. ठीक है. बट ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, वो जनरेशनल होता है, वो री इन्वेस्टमेंट में चलता आ रहा है. राइट. ठीक है. अब उसके in the sense it's all about, see, what I understand and what I have seen is it's all about the media culture or you can say the media narration. मीडिया ने स्टार्टअप को इस तरीके से नरेट किया है, इस वजह से स्टार्टअप्स का इन्वेस्टमेंट दिखता है एंड ट्रेडिशनल बिजनेस का नहीं दिखता है. बट ट्रेडिशनल बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, उसमें भी सारे वो पेपर वर्क हो रहा है, वो सब कुछ उसमें भी एक्विजिशन हो रहा है, उसमें भी सेलिंग हो रहा है, सब कुछ उसमें भी हो रहा है. बट इट इज जस्ट नॉट सो, you can say it's just not a media thing. मीडिया में स्टार्टअप्स की स्टोरीज चल रही है, स्टार्टअप का कहानी चल रहा है, स्टार्टअप का ट्रैक्शन चल रहा है, इसलिए स्टार्टअप्स की चीजें हमें दिखती हैं. बट अदरवाइज वी आर सिटिंग इन गुजरात. गुजरात इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड बिजनेस हैज बीन देयर सिंस वी डिडंट इवन नो इन गुजरात. So I don't think that ट्रेडिशनल बिजनेसेस का जो ग्रोथ है या इन्वेस्टमेंट है या वो जो फोकस है वो सब नहीं चल रहा है, वो चल ही रहा है, वो हो ही रहा है, वो अपने आप ही. let's take an example of Waaree Groups. Okay. Waaree Groups, they are into solar. ठीक है. So we have seen their stories. They are listed in the stock market and with in a really good space. So they have been growing. अब आप स्टार्टअप में पूछो तो स्टार्टअप में they can actually become a startup investor going forward. So these are two different pillars actually. Startup is more about experimenting and going out of the box or trying things instantly, pivoting. Traditional business is more about creating the culture, creating the backbone of the economy, creating MSMEs, right? That area. Whereas both way, some or the other way affect the GDP. But then this, so हर एक घर में, let's say अगर हम भारत को एक घर की तरह ले, हर एक घर में एक होता है ना, एक भाई होता है जो कि बदमाश है, मस्ती मजाक करने वाला, और एक होता है एकदम सीरियस, जिसका पूरे घर का भार उसके ऊपर है. तो that is the MSME and traditional business segment. Or this is the startup segment.
ओके मतलब ये आपने जो बताया, अगर इस टाइप के अगर न्यूज़ को फॉलो करना है तो आप जनरली किस वेबसाइट को फॉलो करते हो, या फिर कैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को हमें फॉलो करना चाहिए? यू मीन टू से जो स्टार्टअप न्यूज़ है? यस. ओके, सो आई सजेस्ट मिंट, ओके. medium.com, किकस्टार्टर, वाई कॉम्बिनेटर के भी काफ़ी सारे डिटेल्स आते रहते हैं. वाई कॉम्बिनेटर इज द फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. Then, so these are the few that the INC42. ओके. Yeah. दूसरा एक क्वेश्चन मुझे ये भी है कि लाइक अगर यूएसए की सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो वो भी एक स्टार्टअप हब है. वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप बने हैं लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, तो वो आज पूरे वर्ल्ड में है. तो आज तक इंडिया का कोई ऐसा स्टार्टअप क्यों नहीं बना? उसके पीछे का कारण आप क्या बताओगे? कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, इंडियन इकोसिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर यहाँ का माइंडसेट ऐसा नहीं है? की रीज़न क्या आप मानते हो कि आज तक हम ग्लोबल क्यों नहीं जा पाए? देखिए, you know, a very wide and known reason is that we are a developing economy and they are a developed economy, which is there. So हमारा जो टेक इकोसिस्टम है ना, हमारे यहाँ से हमारा जो टेक इकोसिस्टम है, it is not yet as built as it should be. ओके. And हमारा जो भी टेक ब्रेन ड्रेन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. जो ब्रेन ड्रेन होता है, हम बोलते हैं कि जितनी भी सिलिकॉन वैली की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं. बट वी हैव टू अग्री, ऑल दोज पीपल आर सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. Though they have a Indian name, but they are citizens there. So they are living there. So that doesn't make us big, or that doesn't make us bold to say that कि हमारे ही लोग वहाँ पे हैं. So that's a very wrong conception or a very wrong way to portray yourself, और इसको बोलते हैं कि जस्ट एक्सक्यूज. एक्सक्यूज भी नहीं, मतलब खुद को खुद ही आप सांत्वना दे रहे हो. तो यू पैटिंग योर ओन बैक कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो नहीं तो यही सही, ये तो हो रहा है. बट देन I think this is the era when we are already on the way, when we are creating our own companies. ये Make in Bharat, Make in India का जो concept है, people are already on the way. So there are startups which are getting into the manufacturing segment. So we are striving hard. We are trying our own muscle ओके. with every possible way where we can tap. But in that case, I will always try to back the point which Piyush Goyal ji tried saying that हमें ना मतलब ऐसे ममरे में कुछ मसाला ऐड करके उसको हेल्दी बना के उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उसको स्टार्टअप बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एक चॉकलेट में दूसरा फ्लेवर डाल के उसको प्रमोट करके उसको स्टार्टअप बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एक जो खिलौना पहले से था, उस खिलौना का बस मटेरियल बदल के उसको प्लास्टिक से वुडन में कन्वर्ट करके उसको स्टार्टअप बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हमें स्टार्टअप बनाने की कोशिश इस हिसाब से नहीं करना चाहिए सिर्फ कि जिससे हमारा सिर्फ जीडीपी बढ़े, जिससे हमारा फ्यूचर बढ़े, जिससे हमारे फ्यूचर के अर्निंग मेथडोलॉजीज बढ़े, जिससे हमारे यहाँ का जो लेबर क्लास है उसका प्रमोशन हो, ताकि वो लेबर क्लास में ही ना रह जाए. वैसे इनोवेशन या वैसा टेक्नोलॉजी या वैसा स्टार्टअप आइडिया सोचना चाहिए. ओके. rather than just sticking to the fact of having a startup just to be called as a founder. मैं जितने भी स्टार्टअप से मिलती हूँ या जितने भी देखती हूँ या जो भी इकोसिस्टम में जहाँ भी जाती हूँ, most of the startups are in the game because they just want to be called as a founder or a startup founder, or just to be in the league of the, and there are investors in that scenario too. There are ghost investors who are just there to be called as an investor. They have not invested in any startups and they don't even intend to. Okay. But they like calling themselves as investors. ओके.
सो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, तो मुझे आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट में मतलब आपको फैसिनेटिंग लगता है कि वो स्टार्टअप इंडिया को अप्रोच करना चाहिए या फिर उस हिसाब से सोच के आगे बढ़ना चाहिए? तो ऐसे कोई स्टार्टअप के एग्जांपल दे सकते हो मुझे? देखिए, अभी ऐसा है कि व्हाट आई मतलब ये मेरा खुद का बिलीफ है, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होता है जिसमें स्टार्टअप करने से ग्रोथ होगा या इसमें नहीं करोगे तो इसमें करोगे तो ग्रोथ नहीं होगा. इट इज़ ऑल अबाउट योर geographical conditions, your requirements, the problems around you. सबसे पहले तो किसी भी बंदे को, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर हो या ना हो, वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ ओके। कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है. उस हिसाब से हमें जो भी आइडिया हम सिलेक्ट करें या जो भी स्टार्टअप करने का हम विजन रखें, वी हैव टू सी टू इट दैट we know what we are doing and we know the roadmap to it. That's it. So, what I understand is if I want to do something and there is 1% possibility of it happening, I should try. Okay. Because there is 1% possibility that it should happen. Okay. आपने जिस हिसाब से बात की तो एक नया डायमेंशन ओपन हुआ कि किस हिसाब से स्टार्टअप के बारे में सोचा जा सकता है. So thank you so much for that. So let's talk about some success story from your side कि आपने कोई स्टार्टअप को मेंटर किया हो और वो अपने आपके साथ अर्ली स्टेज में आया हो और आज वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर आप बताना चाहो. ऐसे तो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी आई एम जस्ट ऑफ द फ्रेम बट बिकॉज मैं किसी का भी नाम लूँगी तो दूसरे को खराब लग जाएगा. सो Okay. लेट्स कीप दिस away from it. Sure, no problem. But still, ऐसा कौन सा मतलब आप पाथवे साइट बताइए कि कैसा परफॉर्मेंस उन्होंने बिल्ड किया हो या देखिए ऐसे तो काफ़ी किस टाइप के एक्शंस है आपके साथ मेंटरिंग लेने के बाद उनको ट्रिगर हुआ हो कि ये भी इम्प्लीमेंटेशन. let me come to that. So basically more than mentoring in the business, my prime focus has always been as a venture coach. So when I say venture coach, I don't mean anything to be like a business coach or all that. So, to be in the startup hustle, you need to have a certain kind of mental frame. You have to be, it is as good as सन्यासी. सन्यासी बनना और स्टार्टअप करना एक ही जैसा है. ठीक है, आप जब तक, और मैं ये 1% भी मजाक करके नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस. सो आप सन्यासी बनो और स्टार्टअप करो, वो सेम क्यों है वो मैं बताती हूँ. आप जब स्टार्टअप के लाइफ साइकिल में घुस जाते हो ना, आपको जब एक पर्पस मिल जाता है ना, तो सिमिलरली जब आपको एक पर्पस समझ में आ जाता है, जब आप सारे मोह माया से परे हो जाते हो, तब आप संन्यास ले लेते हो. जब आपको अपने लाइफ के मोह माया का जो पर्पस है वो पता चल जाता है, तो आप स्टार्टअप कर लेते हो. जब आप स्टार्टअप में घुस जाते हो ना, तो आपके लिए कोई वीकेंड नहीं होता, आपके लिए कोई फैमिली टाइम नहीं होता है, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, आपके लिए कोई फ्रेंड्स डे आउट नहीं होता है, आपके लिए कोई नाइट आउट नहीं होता है, आपके लिए लॉन्ग ड्राइव नहीं होता है. एंड ये सच है, ये होता है. हाँ, आप एक लेवल तक बना लो, उसके बाद आप शायद ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सको, बट आपका पैर जमीन पे आपके स्टार्टअप में ही होना होता है. आपको जब तक, और ये चीज़ एक, जब कोई स्टार्टअप मेरे पास आता है, मेरे पास 2-3 अलग अलग लेवल के स्टार्टअप्स आते हैं. एक तो है जो टीन एज स्टार्टअप्स या स्टूडेंट स्टार्टअप्स आप बोलो, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग ब्लड, दम कर लेंगे, लड़ लेंगे वाला. एक आते हैं जो मिडिल एज्ड होते हैं, एक आते हैं जो एल्डरली होते हैं. मतलब एल्डरली, व्हेन आई से एल्डरली आई मीन 45 प्लस 50 प्लस ऐसे. एक आते हैं जो 25 to 45 के बीच में. एक आते हैं उससे छोटे. तो जो हर एक एज के स्टार्टअप के साथ कन्वर्सेशन अलग टाइप का होता है.
जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स होते हैं उनको उनके उनके स्टार्टअप आइडिया को सुन के या समझ के मैं ये उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई या बहन तुझे समझ में आ रहा है ना तो किस में घुस रही है. You should know that you're entering into a black hole. So my focus is all about making them aware that you should know where you're getting into. Even जो 25 plus होते हैं, even for them, you have to understand that if you are trying to build this, you will not become Jeff Bezos or Warren Buffett within 2 years. Reality check, get that noted. You are not going to become a multinational billionaire overnight, or it is not going to happen. And it will not be a linear growth. It will be a rocky road, and you have to get bumped every here and there. So you have to know. So my first point is to make them aware that this is what the reality is. Now tell me, you want to get into it? Then let's talk. Few people are there जिनको पता होता है कि हाँ हमें पता है कि हम तो ये कर रहे हैं और हमें ये आग का दरिया है, डूब के जाना है. उनको पता होता है. तो उनके साथ जब जिनको पता होता है उनको कुछ और चीजें पता चलती हैं. ठीक है. So my first focus is that you have to create a mindset first. Before becoming a startup founder, you have to create the mindset for a startup founder. Few things are innate. Few things you acquire. ठीक है. Few things you learn. Few things you unlearn. You can't think of weekend holidays. You can't think of summer holidays. You can't think of spouse. You can't think of girlfriend, boyfriend. You just can't have that luxury when you're building. You can't. Multitasking is a thing. Multitasking आपके काम में आप कर सकते हो. Multitasking आप लाइफ में नहीं कर सकते. And I don't understand this logic of work-life balance. You have only one life. How can you have a balance? You just do it or you don't do it. Work-life balance नहीं होता. So you have to see to it that जो आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आप उनको भी ऐसा ही चुनो जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही हो. आपको अपने फैमिली मेंबर्स को के साथ भी वैसे ही उनको प्राइम करना है कि उनको आपकी एनर्जी समझ में आए. Even if they're not getting into it, but at least they should understand it. Okay. So that is what it is. You have one life. You think that as soon as you exit your office, you will have a different energy, you will become a different person. And as soon as you enter the office, you'll become a different person. Is that really possible? If that is possible, or if you are making that possible, what kind of a mental shift you are having to do? That's really very not healthy. राइट. सो आप मुझे अपनी जर्नी से बताइए. आप भी 2-3 स्टार्टअप में शायद इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ये जानना है कि आपकी इस जर्नी में आपको क्या की लर्निंग मिली है आज तक, मतलब जो बेस्ट आप अगर शेयर करना चाहो अभी तक का. So as I mentioned, clarity of thought is something which is very much required in whatever you do in life. आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना जरूरी है कि आप चाहते क्या हो. What do you want from this business, from this life, from this person, from this venture, from this job? So whenever I have been involved in a job, in a business, in a startup, with a person, I have always had my clarity of thought. Ki what is my purpose with that venture? पर्पस अगर क्लियर रहता है, अगर क्लैरिटी रहती है, तो आई थिंक थिंग्स बिकम वेरी मच इजियर. नाउ लेट्स प्ले वन स्मॉल रैपिड फायर राउंड. मुझे आप ये बताइए कि आज तक आपको जो पिच ऐसे रिमेम्बर हो जो आपके लिए बेस्ट हो, ऐसी कौन सी ब्रांड थी या कोई ऐसी Okay, pitch? so I would give that to my partner, my business partner, Utpal Ghosh. Okay. He's a founder of Protein Box. And, when he pitched Protein Box to me, so that was one pitch which I'll always remember. Yeah. Okay. फाउंडर की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करने पे मजबूर कर दे, वो क्या है? Again, as I said, clarity. Okay. Clarity of thought, clarity of vision is very much important.
the conviction that the person brings on the table is a deal maker. Which startup do you prefer the most, like bootstrap or pre-seeding? Bootstrapped any day. Okay. Equity or debt? What do you prefer? Equity. Why? So if we go for equity, then the person will have skin in the game. So I will never prefer an equity without a strategic investment. So if you are investing in my startup, I would require a strategic investor and not just the money of the investor. Okay. Now, one book that you will suggest to every entrepreneur. One book that I would suggest to every entrepreneur. Read the story of Tatas. Okay. Yeah. So the story of Tatas or the legacy of Tata gives you perception, a multi-angled perception of not just entrepreneurship, but about how to create a legacy, how to not be a boss and be a leader. People thrive and people are going around trying to be a boss. But how do you be a leader and yet not be bossy? Okay. So, for you, what do you mean by leadership? Leadership is something wherein you have to be the most hardworking person in the room, Okay. most humble person in the room, and yet be very strict and yet be very notable. That's how it is. Okay. As I followed you on LinkedIn, and in my perspective, you are a leader. So I just have one curious question. How do you communicate your leadership towards your students? So when you say students or startups, I would say that there's nothing. So you don't become a leader. Raj, I'll tell you, this is something that I have understood or learned over the time, that there are certain leadership lessons going on, leadership talks, and then leadership modules. You register there and get enrolled and learn how to be a leader. I think that is something you build in yourself over time. And you don't become a leader. So if you ask me, I personally love the way Dhoni's leadership. Okay. So you don't have to be a leader, you don't have to be on the limelight. You can be a leader even if you're in backstage. Okay. So your people should want you to be on limelight. That's how leadership should be. Okay. So leadership is something wherein I am the smartest person, fine, but my people are smarter than me. That's how you have to build it. Okay. So that you have to just be there to monitor things, but things are just happening. Okay. Now tell me one word that describes your journey so far. So, I am a very expressive person. So for me, one word that will describe my journey, to summarize it in one word is very tough, but still I'll try to do that. I would say dynamic. Okay. That's great. Dynamic would be the word that will describe my journey. Okay. Now tell me your go-to thing or motivation for you. Go-to thing or motivation, like आपको कभी भी लाइफ में डाउन फील हो रहा है तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? मैं खुद को आईने में देख लूंगी. Okay. सो आई थिंक कि अगर किसी इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उसको वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए या मुझे सुबह उठ के जिम जाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए. बिकॉज जिस काम के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है वो काम आप दिल से थोड़ी कर रहे हो. You don't need motivation for your vision. If I have to get motivated, I'll look at myself in the mirror and that's enough. So I'll know where am I right now and where I need to grow to. Okay. Now I have one more question related to again fundraising. कई बार क्या होता है कि जब हम फंड रेज करने जाते हैं तो वीसी या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो हमें ऐसा बोलता है
कि अगर आप ये चेंज करने के लिए रेडी हो तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। उस टाइम पे किसी भी स्टार्टअप को उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, एज अ थ्रेट देखना चाहिए, या फिर उस मोमेंट को कैसे रिप्लाई करना चाहिए, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। देखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था दैट एज अ फाउंडर आपको अपना ईगो निकाल के साइड में रख देना पड़े। ईगो निकाल के साइड में रखना पड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ओके। ठीक है, यू हैव टू सी टू इट दैट जो भी चेंज वो करने बोल रहे हैं, इज इट अ विन विन और इज इट गोइंग टू चेंज द एंटायर डायनामिक और entire purpose of your vision? And are you, so if it is going to change the entire purpose of your vision, I'm not saying anything wrong or right. Are you ready to change the purpose of your vision? If yes, then you should go for it because it will get you profits. If no, then just don't go for it. You should know what you are building, and you should have have full belief in yourself that with or without that person, you'll still be able to build it. Simple. Okay. Got it. Now tell me, startup does not fail because of funding, but आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है वो उसको फेल कर सकती है? Startup does not fail because of funding. It fails because of a poor team. Okay. और आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आज तक स्टार्टअप के बारे में कोई ऐसा मिथ जो आपने रिपीटेडली सुना हो, जो आप अभी मेरा आइडिया सबसे यूनिक है. Okay. That is one of the biggest myth that I have heard from startups. मेरा आइडिया सबसे यूनिक है, आज तक कभी किसी ने नहीं किया है. तो आप ऐसे लोगों को रियलिटी चेक करने के लिए क्या सजेशन दोगे? So फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक रिसर्च में ही निकल के आ जाता है. यू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ देम एंड डू अ बेसिक वेब रिसर्च. निकल के आ जाता है कि नहीं, मतलब है या नहीं है. और उसका भी एक ऑल्टर पार्ट ये है कि अगर किसी ने नहीं किया है, मान लेते हैं चलो किसी ने नहीं किया है, आपका स्टार्टअप सबसे यूनिक है, तो क्यों नहीं किया है इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. क्यों नहीं किया है? कुछ प्रॉब्लम होगा तब जाके नहीं किया है, या शायद लोगों ने कोशिश किया था नहीं हुआ है. तो जिन लोगों ने कोशिश किया था और उनसे नहीं हुआ है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर फेलियर? ओके. सो वी शुड लर्न फ्रॉम द फेलियर एटलीस्ट. सो एटलीस्ट टू लर्न फ्रॉम द फेलियर यू हैव टू नो दैट इतने लोगों ने ट्राई किया था बट उनसे नहीं हुआ है. सो ओनली देन यू कैन लर्न फ्रॉम द फेलियर. ओके. नाउ टेल मी वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट कोई भी स्टार्टअप है जो अभी तक उसने अपना फर्स्ट सेल्स नहीं किया है, ठीक है, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है. तो अगर उसको अपनी पिच डेक बनानी है तो उसके ऊपर कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो फोकस करे ताकि कोई आइडिया पे भी इन्वेस्ट करने पे मजबूर हो जाए? आइडिया पे इन्वेस्ट करने, सी अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन्वेस्टर आपको वैसे ही अप्रोच करने पड़ेंगे जो आपके लेवल के स्टार्टअप में या आपके स्टार्टअप के स्टेज में इन्वेस्ट कर रहा. आप रैंडमली इन्वेस्टर्स खोज के या इन्वेस्टर को लिंक्डइन से चेक करके अगर उनको आप भेजोगे पिच डेक्स, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. ओके. रैदर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करोगे, दैट विल मेक मोर सेंस. ठीक है. आई सजेस्ट कि जो भी ऐसे पिच डेक या पिच डेक बनाने का उनको टैक्टिक्स चाहिए या ऐसा कोई जहाँ पे वो जाए और उनको फंडिंग मिल जाए, सबसे पहले तो ये थॉट ही छोड़ देना चाहिए कि ऐसा होता है कि आप जाओ और आपको फंडिंग मिल जाए. आई हैव मेट एंड आई हैव कम अक्रॉस स्टार्टअप्स हु हैव मेट 100+ इन्वेस्टर्स बिफोर गेटिंग देयर फर्स्ट इन्वेस्टर. ओके. So this is a long journey, tough journey, lonely journey, but a journey worth it. So you have to keep doing it. So बोलते हैं ना कि practice makes man perfect. So I suggest most of my startups to go for several, काफ़ी सारे startup competitions आते रहते हैं, startup pitching competitions आते हैं, startup funding competitions आते हैं. I suggest them to go and participate in these. Don't wait that someday suddenly कॉल आएगा आपको और कोई बोलेगा कि हाँ आपका स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेना था ना आपको, आप आ जाओ हमारे ऑफिस में. ऐसा नहीं होता है. आप
इन्वेस्टर्स को मेल पे मेल करो, बट अगर आप ऐसे कंपटीशंस में जाओगे यू विल गेट नोटिस्ड. And at this one thing is that you will get noticed. Secondly, आपका जो public speaking skills है, your pitching skills, your convincing skills, your convincing skills of convincing people or the jury members whom you are convincing that your idea is good or this is happening or that is, going to get better. So these skills will evolve. You will get a grip on all these. Okay. So the more and more you go out and pitch, any opportunity you get, कोई भी opportunity आपको मिले, just take it, go there, pitch. ऐसा मत सोचो कि इनके सामने ये तो बहुत कम लोग हैं या ये तो ऑडियंस मेरी नहीं है. आपकी ऑडियंस कोई नहीं है, आपकी ऑडियंस सब है. ऐसा सोच के आपको पिच करना है. Okay. जब आग लगे तब मत भागो, उससे पहले ही भागना शुरू कर दो. नाइस. सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आज हमें जो भी देख रहे हैं, मतलब कोई भी स्टार्टअप ओनर है, अगर उसको इन्वेस्टर रेडी बनना है इन नेक्स्ट 90 डेज, तो उनको ऐसे कौन से चेकलिस्ट है जो आप सजेस्ट करोगे जो मस्ट टू डू है, जो फॉलो करने ही चाहिए उनको, वो क्या है? See, first of all, keep your accounts and your paperwork clean. Secondly, have a very lean pitch deck, specific pitch deck. Third and most important thing, even if you don't have a valuation, don't run behind कि startup valuation करके सामने investment के लिए जाना है. क्योंकि वो investor को अगर आपके pitch में interest होगा, तो वो आपका pitch का valuation निकाल ही लेगा, मतलब आपके startup का valuation निकाल ही लेगा. But what you can do is, you can have a जो भी quantitative parameters है ना, list it down in a single one pager. List down all the quantitative parameters in one page. Okay. All it's taken from revenue to profit to types of products or services, team members profile, how are they included in your business, everything on one page. And fourth most important thing is that see to it that you are pitching you are creating a list of investors whom you want to pitch. Don't just go to an investor because your fellow startup or your friend who also has a startup has got funded from so and so investors. Don't go and don't do a carpet bombing method for searching investors. Rather than that, go specific and parameter wise or specific and domain wise or stage wise based on what suits you as a startup. And before going to a investor, you see to it that you have pitched to different government institutes or government schemes or different competitions, as I initially suggested. So you are through all these things and you have got hold of the certain kind of government grants or government schemes or subsidies which is readily available from Government of India. So once you utilize those can be your breather or those can act like a bridge fund. So once those are utilized, then you'll get a breather space to at least smoothly run your operations. And then moving forward, you can approach investors. Okay. So आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा कर रही है अभी, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसके ऊपर स्टार्टअप को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे. तो आप उनके 2-3 स्कीम का नाम दे सकते हो कि क्या है और कितनी सक्सेसफुल रही है एक स्टार्टअप को बूस्ट करने में. एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, SISFS, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की भी IC स्कीम है, इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट की स्कीम है. SSIP 2.2, that is again a student startup innovation fund. Then there is Nidhi Prayas from Government of India. Then there are several such schemes. The scheme lists are readily available on the websites of Startup India Seed Fund and the Startup Gujarat, as well as Startup India. Both in both the websites, the details. So nowadays, the government websites related to startups are very easily accessible, and all the data of the different schemes are available very openly.
You can access it anytime. But if you ask me that one scheme that you should not go without application is SISFS, Startup India Seed Fund. That is that one scheme which you can avail from anywhere in India to anywhere in India. Okay. So even if you're a startup in Haryana, you can apply in Gujarat. Even if you're a startup in Delhi, you can apply in Haryana or in UP or in anywhere. You know, it's like so widespread, the institutes that which has got the funding through the institutes, wherein you will actually route the funding. So different institutes and different incubation centers have been selected and through which the fund is routed. All these incubation centers are widespread across India. Okay. And it will be a very, it is a very seamless process. You apply through the portal, you get a call, you take the process ahead, you upload all the documents, then you take the pitching. The process and everything happens within a span of 45 days. So that's a timeline. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Devopriya, for coming on Radical Talk Show. Yeah. It was amazing conversation and even कई बात तो ऐसी थी जो मुझे भी आज इंस्पायर कर रही है कि मैं मेरे स्टार्टअप में क्या मिस कर रहा हूँ और मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए. So thank you so much for Thank you. great conversation. Yeah. Thank you.